غازی میں تھانہ کوٹ نجیب اللہ کی حدود میں زمین کے تنازع پر گولیاں چل گئی، نوجوان جاں بحق، ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ فرحت اللہ گھر کے باہر کام کر رہا تھا کہ غفران شاہ وغیرہ نے فائرنگ کر دی، گولیوں کی زد میں آ کر فرحت اللہ دم توڑ گیا۔ پولیس نے کارروائی شروع کر دی۔ ایس ایچ او ارشد خان نے کہا کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیں گے۔ سکھر میں تھانہ نیو پنڈ کی حدود ریلوے کراسنگ کے قریب پولیس مقابلہ ہوا، ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ ایس ایس پی سکھر کے مطابق زخمی ڈاکو چوری، ڈکیتی، پولیس مقابلوں سمیت متعدد سنگین وارداتوں مقدمات میں مطلوب تھا۔ گرفتار زخمی ڈاکو کی شناخت جمیل احمد عرف جمی کے نام سے ہوئی۔ قبضے سے پستول، میگزین اور گولیاں بھی برآمد کر لی گئی۔ قصور میں منڈی عثمان والا کے نواحی علاقے میں نوجوان کی گھریلو جھگڑے سے تنگ آ کر خودسوزی کی کوشش، جھلس کر شدید زخمی ہو گیا۔ بستی ونیکا کے رہائشی 40 سالہ شوق کا اپنے سسرال میں بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا تھا۔ لڑائی جھگڑے پر طیش میں آ کر اشفاق نے خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ ڈی پی او قصور کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ سٹی پتوکی کی ڈکیت گینگ کے خلاف بڑی کارروائی، متعدد مقدمات میں مطلوب مراد عرف مرادی ڈکیت کو سرغنہ سمیت پکڑ لیا۔ قبضے سے 11 لاکھ روپے نقدی، 10 موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد کر لیا اور دوران تفتیش 16 سنگین وارداتوں کا بھی انکشاف۔ اور اوکاڑا میں جی ٹی روڈ پر ڈاکو نے کار سوار حسنین کو اسلحے کے زور پر لوٹ لیا۔ نوجوان نے نقدی لوٹ کر فرار ہوتے ہوئے ڈاکو پر کار چڑھا دی۔ گاڑی کی ٹکر سے ایک ڈاکو زخمی ہو گیا جس کو زخمی حالت میں عوام نے پکڑ لیا۔ تھانہ صدر پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے فرار ہونے والے دوسرے ڈاکو کو بھی گرفتار کر لیا۔ ڈاکو کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے شارٹ بریک کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ فوڈ اتھارٹی ٹیم کا اچانک اگی کا دورہ ہے۔ ہوٹلوں، فوڈ کیفے اور دیگر دکانوں میں مختلف اشیاء کی کوالٹی کو چیک کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر فوڈ ڈاکٹر مختار احمد، ڈاکٹر سمیع اللہ، سیفٹی آفیسر نعمان خان اور مہر علی نے متعدد دکانداروں کو صفائی کے حوالے سے ہدایات بھی جاری کی اور موقع پر فوڈ لائسنس بھی جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ صفائی کا خاص خیال رکھا جائے اور عوام کو اعلیٰ معیار فراہم کیا جائے، اس پر کسی کے ساتھ کوئی بھی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ غازی میں تھانہ کوٹ نجیب اللہ کی حدود میں زمین کے تنازع پر گولیاں چل گئی، نوجوان موقع پر جاں بحق ہو گیا، ملزمان موقع سے فرار۔ فرحت اللہ گھر کے باہر کام کر رہا تھا کہ غفران شاہ وغیرہ نے فائرنگ کر دی، گولیوں کی زد میں آ کر فرحت اللہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے کارروائی شروع کر دی۔ ایس ایچ او ارشد خان نے کہا انشاءاللہ بہت جلدی تمام ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا۔
नाज़रीन आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर कोहाट उस्मान अशरफ ने महकमा खुराक के असिस्टेंट फूड कंट्रोलर गुलाब खान और दीगर फूड स्टाफ के हमरा चीनी ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ गोदामों का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर कोहाट उस्मान अशरफ ने कहा कि चीनी की ज़ख़ीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी गई हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी भी सूरत चीनी की ज़ख़ीरा अंदोजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर शामिल करें बन्नू से, जहां 2 माह से जारी रहने मंडी वाला जानी खेल इलाकाई में 2 माह से क्रिकेट जारी रहने टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट में बन्नू के मुख्तलिफ तहसीलों से 40 बेहतरीन टीमों ने हिस्सा लिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फिदा मोहम्मद खान। वाला अमन क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट का इख्तितामी मैच हिंदी खेल स्टार्स और यंग स्टार नरमी खेल के दरमियान खेला गया, जो यंग स्टार्स नरमी खेल ने एक सख्त मुकाबले के बाद आखिरी बॉल पर जीत लिया। फाइनल मैच को देखने के लिए तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद थी। आखिर में टूर्नामेंट में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए और विनर टीम को दुम्बा पेश किया गया। तकसीम इनामात की तकरीब से अपने अपने खिताबात में मुकर्रीन का कहना था कि जानी खेल के नौजवान अमन, खुशहाली और खेलों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इन्हें मजीद बदमनी की दलदल से निकाला जाए। उन्होंने मुंतखब अवामी नुमाइंदों से भी टूर्नामेंट के फाइनल में शिरकत न करने पर नाराजगी का इजहार किया। नाज़रीन आपको बताएं कि सखर में थाना न्यू पिंच की हदूद रेलवे क्रॉसिंग के करीब पुलिस मुकाबला हुआ। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी सखर के मुताबिक जख्मी डाकू चोरी, डकैती, पुलिस मुकाबलों समेत मुतादिद संगीन वारदातों मुकदमात में मतलूब था। गिरफ्तार जख्मी डाकू की शिनाख्त जमील अहमद उर्फ जेमी के नाम से हुई है। कब्जे से पिस्तौल, मैगजीन और गोलियां भी बरामद कर ली गई। अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि टंडुआला यार में किसाना मोरी के करीब घास से भरा ट्रक उलट गया। हादसे में 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा टायर रोड टूटने के बायस पेश आया। 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अपडेट करते चले आपको टंडुआला यार से, जहां किसाना मोरी के करीब घास से भरा ट्रक उलट गया। हादसे में 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा टायर रोड टूटने के बायस पेश आया। 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वहीं दूसरी जानिब बोकाड़ा मेन जीटी रोड पर डाकुओं ने कार सवार हसनैन को असलहे के जोर पर लूट दिया। कार सवार ने नकदी लूट कर फरार होते हुए डाकुओं पर कार चढ़ा दी। कार की टक्कर से एक डाकू शदीद जख्मी हो गया, जिसको जख्मी हालत में अवाम ने पकड़ लिया, जबकि दूसरा डाकू फरार होने में कामयाब हो गया। थाना सदर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए फरार होने वाले दूसरे डाकू को भी गिरफ्तार कर लिया। डाकू को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। नासिन आपको बताएं कि तरिंटा मोहम्मद पनाह में खाद माफिया के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर मोहम्मद शकीब सरवर का क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। मुतादिद डीलरों को महंगी खाद फरोख्त करने पर जुर्माने आयद कर दिए गए। 4 खाद डीलरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए। कार्रवाई के दौरान 4 दुकानें भी सील कर दी गई। मुलजिम में इरफान मस्तूई, सिया और इब्रार शामिल हैं। एसी का कहना था कि नाजायज मुनाफाखोरों और जालसाजों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। नाज़रीन आपको अपडेट करें कि सरगोदा पुलिस इन एक्शन हो चुकी है। शॉपिंग मॉल में खवातीन के साथ नासेबा हरकत करने वाले जवान पकड़ लिया गया। मुलजिम शॉपिंग मॉल में खवातीन को नासेबा हरकत के जरिए हिरासा करता था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए उबाश को शनाख्त करके गिरफ्तार किया। डीपीओ का कहना था कि खवातीन को हिरासत करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। गिरफ्तार मुलजिम को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी।
आपको बताएं कि खानेवाल के नवाही इलाके कच्चा खूह में थाने के करीब मेन बाजार में आबिद बेकरी के मालिक से डाकू 2.5 लाख नकदी लूट कर फरार हो गए। थाना कच्चा खूह पुलिस मुलजिमान को पकड़ने में नाकाम हो चुकी। ताजिर बरादरी का आईजी पंजाब और डीपीओ खानेवाल से नोटिस लेने का मुतालबा है। आपको अपडेट करते चले। इस हवाले से मुनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस तरह से डाकू जो है वो बेकरी पर धावा बोल रहे हैं। खानेवाल के नवाही इलाके कच्चा खूह में थाने के करीब मेन बाजार में आबिद बेकरी के मालिक से डाकू 2.5 लाख नकदी लूट कर फरार हो गए। थाना कच्चा खूह पुलिस मुलजिमान को पकड़ने में नाकाम है। ताजिर बरादरी का आईजी पंजाब और डीपीओ खानेवाल से नोटिस लेने का मुतालबा है। खबर शामिल करें नारंग मंडी से, जहां लेस्को नॉर्थ डिवीजन के नए एसटीओ सलमान मजीद की क़यादत में बिजली चोरों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन जारी है। दर्जनों बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए। आखिरी बिजली चोर के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म का इजहार करते हुए एसटीओ सलमान मजीद का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए जानते हैं। नारमरी लेस्को नॉर्थ डिवीज़न के एसटीओ सुलेमान मजीद ने बिजली चोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करते हुए नंगल कलां, नगर खुर्द, डेरा रहमानपुरा व दीगर देहातों में लेस्को वर्कर यूनियन नॉर्थ नारंग के चेयरमैन मलिक मोहम्मद यासिन, यूथ चेयरमैन सैयद अदनान काजमी, सीनियर वाइस चेयरमैन चौधरी ताहिर अशफाक औलख, मोहम्मद मुनपटी, मलिक नियामत अली और मोहम्मद रियाज के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन करते हुए दर्जनों बिजली चोरों को रंगी हाथों काबू कर लिया। मुतअद्दिद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। लेस्को छापामार टीम ने बिजली चोरों की केबल, मीटर और दीगर आलात भी कब्जा में ले लिए। बिजली चोरों ने डायरेक्ट कुंडियाँ लगा रखी थी और सरेआम बिजली चोरी के मर्तकब पाए गए। मजीद जानते हैं एसटीओ साहब जनाब सुलेमान मजीद। पाकिस्तान की हिदायत की रोशनी में और हमारे सीओ साहब और एससी और एक्शन साहब की हिदायत की रोशनी में बिजली ऑपरेशन के खिलाफ, बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में आज नारंग के मुख्तलिफ गाँव के पुलिस की मदद के साथ, पुलिस की पूरी मदद हमारे साथ ही, हमने बिजली चोरी पकड़ी है। डेड फाल्टर की रिकवरी की गई है। दर्जन से ज़्यादा बिजली चोर जो है वो गिरफ्तार भी हुए हैं। इंशाल्लाह ये ऑपरेशन आखिरी चोर के हाथ में तक जारी रहेगा और जो लोगों का ये दिला था कि लोग चोरी करते हैं उनको हम पकड़ते नहीं, तो इंशाल्लाह हम हुकूमत का हमारे साथ पूरा तावन है। हम इन चोरी को चोरों को कैफरे किरदार तक इंशाल्लाह पहुँचाएंगे। जी शुक्रिया जी। खबर शामिल करें आरिफ वाला से, जहां तहसील बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर हैं। जोरों शोर से जारी है। यूनाइटेड फ्रेंड्स ग्रुप के नामजद उम्मीदवारों के एहसास में पुरवकार जोहराना वकला की कसीर तादाद में शिरकत हुई। तकरीब का एहतमाम नूर महल मार्की में किया गया। ग्रुप में नए दोस्त भी शामिल हैं। मुख्तलिफ इत्तेहादी ग्रुप्स के रहनुमाओं और मेंबरान ने शिरकत की। स्टेट सेक्रेटरी के फराइज शेख इब्रार एडवोकेट ने अदा किए। बार इंतखाबात में 2 ग्रुप, प्रोफेशनल ग्रुप और यूनाइटेड फ्रेंड्स ग्रुप आमने सामने हैं। यूनाइटेड फ्रेंड्स ग्रुप के नामजद करदा उम्मीदवारों में मियां रियाज हुसैन जम्मू, चौधरी शबीर आमिर एडवोकेट भी शामिल हैं। नाज़रीन आपको बताएं कि उकाड़ा, पाकपतन, चिन्योट, गैम्बर और गिरदनवा में बारिश का सिलसिला जारी है। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। बारिश के बाद बिजली के मुताबिक फीडर स्ट्रिप कर गए। शहरी बारिश से लुत्फानंदोज होने लगे। ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ मौसम ने अंगड़ाई ले ली है। गैम्बर में बारिश में लुत्फानंदोज होने के लिए बच्चे सड़कों पर निकल आए। आपको अपडेट करते चले बारिश के सूरत हाल के हवाले से, तो उकाड़ा, पाकपतन, चिन्योट, गैम्बर और गिरदनवा में बारिश का सिलसिला जारी है। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। बारिश के बायस बिजली के मुताबिक फीडर स्ट्रिप कर गए। शहरी बारिश से लुत्फानंदोज होने लगे। ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ मौसम ने अंगड़ाई ले ली है। गैम्बर में बारिश में लुत्फानंदोज होने के लिए बच्चे भी
सड़कों पर निकल आए। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर चपा की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में 9 सितंबर से 15 सितंबर तक डेंगू से बचाव के हवाले से बरोए कारलाइक इकदाम का जायजा लिया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फजल जावेद खान। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर की जेर सदारत डीसी ऑफिस के कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए डेंगू का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में 9 सितंबर से 15 सितंबर तक डेंगू से बचाव के हवाले से बुरो कर लागे इकदाम का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि डेंगू के लिए महकमा सेहत और दीगर मुतल्लिका महकमे के अफसरान स्टाफ फील्ड में मुतहरक अंदाज में काम करें। उन्होंने हिदायत की डेंगू की एहतियाती तदबीर पर अमल करते हुए पानी को एक जगह न ठहरने दिया जाए, सफाई स्तर के कामों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि डेंगू लावे की सर्वेलेंस मौसर तरीके से की जाए। डेंगू के लिए तश्कील दी गई ऑनडोर आउटडोर टीमों के अरकान फील्ड में मुफाल अंदाज में काम करें। उन्होंने हिदायत की कि डेंगू सरगर्मियों में मजीद इजाफा किया जाए और तमाम अमूर दुरुस्त और शफाफ तरीके से अंजाम दिए जाए। डिप्टी कमिश्नर ने डेंगू के हवाले से मुतल्लिका अफसरान व फोकल पर्सन की इनफरादी कारकर्दगी का भी जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर फोकल पर्सन डॉक्टर खालिद चंदन ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 1 जनवरी 2023 से 15 सितंबर के दौरान जिला भर में डेंगू के 8,205 मुस्तबा केस रिपोर्ट हुए, जबकि 139 मुकामात पर डेंगू लावा पाया गया। इस तरह जिला भर में 9 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2023 तक डेंगू के 110 मुस्तबा केस रिपोर्ट हुए और 3 मुकामात पर डेंगू लावा पाया गया। उन्होंने बताया कि डेंगू लावा के खात्मे के लिए फौरी मौसर इकदाम बुरे कर लाए गए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि जिला भर में डेंगू के हवाले से 1,750 हॉट स्पॉट्स मौजूद हैं, जिनकी 100% कवरेज को यकीनी बनाया गया है, जबकि जिला भर में 520 इंडोर आउटडोर टीमें फील्ड में फाल हैं। कैमरामैन खुरम शदाद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़। अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कसूर में मंडी उस्मान वाला के नवाही इलाके रशवाल में नौजवान की घरेलू झगड़े से तंग आकर खुदसूसी की कोशिश है। झुलस कर शदीद जख्मी हो गया। बस्ती वनीका का रिहायशी 40 साल अशफाक का अपने ससुराल में बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था। लड़ाई झगड़े पर तैश में आकर अशफाक ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको अपडेट करते चले अफसोसनाक खबर के हवाले से कि कसूर में मंडी उस्मानवाला के नवाही इलाके रजवाल में नौजवान के घरेलू झगड़े से तंग आकर खुदसोसी की कोशिश की गई। झुलस कर शदीद जख्मी हो गया। बस्ती वनीका का रिहायशी 40 साल अशफाक का अपने ससुराल में बीवी के साथ झगड़ा हुआ था। लड़ाई झगड़े पर तैश में आकर अशफाक ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। डीपीओ कसूर की हिदायत पर एसएचओ थाना सिटी पतोकी की डिकेट गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। मुतादिद मुकदमात में मतलूब मुराद उर्फ मुरादी डिकेट को सरगना समेत पकड़ लिया। कब्जे से 11 लाख रुपए नकदी, 10 मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया और दौरान तफ्तीश 16 संगीन वारदातों का भी इंकशाफ है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि डीपीओ कसूर की हिदायत पर एसएचओ थाना सिटी पुलिस की डिकेट गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। मुतादिद मुकदमात में मतलूब मुराद उर्फ मुरादी डिकेट को सरगना समेत पकड़ लिया। कब्जे से 11 लाख रुपए नकदी, 10 मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया। दौरान तफ्तीश 16 संगीन वारदातों का भी इंकशाफ है। नाज़रीन आपको बताएं कि पुलिस ड्राइविंग स्कूल चिन्योट में कोर्स के इख्तिताम पर तकरीब का इनेकाद किया गया। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने कोर्स मुकम्मल करने वाले 30 अफराद में सर्टिफिकेट तकसीम किए। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद का कहना था कि ISO सर्टिफाइड पुलिस ड्राइविंग स्कूल में अवाम को जदीद सहूलियात के साथ साथ तरबियत दी जाती है। कोर्स के दौरान ट्रैफिक कवानीन से आगाही पर मल्टीमीडिया ब्रीफिंग और ड्राइविंग की अमली प्रैक्टिस करवाई जाती है। पुलिस ड्राइविंग स्कूल की बदौलत अवाम को मियारी और इंटरनेशनल तर्ज पर अमली तरबियत दी जाती है। नाज़रीन आपको बताएं कि रहीम यार खान की तहसील सादकाबाद के THQ अस्पताल में DC शकील अहमद भट्टी ने कार्डियोलॉजी यूनिट का इफ्तिताह कर दिया।
84 ملین کی لاگت سے تیار ہونے والا یونٹ 15 بیڈ پر مشتمل ہے، جہاں امراض قلب کے مریضوں کا علاج جاری ہے۔ انچارج کارڈیالوجی وارڈ ڈاکٹر منیب کے مطابق دل کے مریضوں کے لیے یہ وارڈ کسی نعمت سے کم نہیں۔ سابقہ ایم پی اے چودھری شفیق کا کہنا تھا کہ 6 سال پہلے پروجیکٹ شروع کیا، مگر حکومت بدلی تو منصوبہ بھی تاخیر کا شکار ہو گیا۔ کارڈیالوجی یونٹ کے آغاز سے اب امراض قلب کے مریضوں کو اپنے ہی شہر میں بروقت علاج کی سہولت میسر ہوگی۔ جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مجیب پیرزادہ ہے، میں یہاں کے جو کارڈیالوجی وارڈ ہے اس کا انچارج ہوں۔ صادق آباد کی عوام کے لیے ایک بڑی خوشخبری کی خبر ہے کہ یہاں پہ دل کے وارڈ کا جو ہے نا وہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اب انشاءاللہ کوئی بھی دل کا جو مریض ہوگا صادق آباد کا، وہ کہیں ریفر نہیں ہوگا، وہ یہاں پہ ہی اس کو ہم مینیج کریں گے۔ اور نہ صرف یہ صادق آباد کی عوام کے لیے ایک گفٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کے جو ملکہ علاقے ہیں دوسرے صوبوں کے، وہ عوام بھی مستفید ہو سکیں گی اس فیسلٹی سے، کیونکہ صادق آباد کی لوکیشن ایک ایسی ہے کہ ایک تو اس کی اپنی پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے، اور ہر عوام نے دوسرے پروونسز سے یہاں سے انٹر ہو کے جانا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا وارڈ ہے وہ ٹوٹل 15 بیڈ کا ہے۔ انیشلی ہم نے 5 بیڈز بنا کے اس کو جو ہے نا وہ ہائیلی اکوپڈ کر کے جو ریسنٹ گائیڈ لائنز ہیں، جو ریسنٹ ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ہم نے پراپر افتتاح کر دیا ہے۔ مزید ٹائم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس میں اور بہتری آئے گی۔ تو میں اپنی صحافی برادری کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ماشاءاللہ صادق آباد میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا تحفہ جس کا آج افتتاح ہو رہا ہے، جسے کارڈیالوجی سینٹر کہا جاتا ہے، اور جسے ہمارے ڈپٹی کمشنر شکیل احمد بٹی صاحب نے اس کا افتتاح کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے آج سے 6 سال پہلے اس پروجیکٹ کو حاصل کیا تھا، اور اس کی بلڈنگ بنائی تھی، جگہ لی، سارا کچھ کیا، لیکن یہ پایا تکمیل تک پہنچ نہیں سکا۔ پی ٹی اے کی حکومت نے جو 4 سال رہی ہے، یہ اسی طریقے سے یہ ساری بلڈنگ کھنڈرات بنتی جا رہی تھی، سامان جو 80% آیا ہوا تھا خراب ہو رہا تھا۔ تو لہذا جو ہی یہ حکومت تبدیل ہوئی ہے، تو اسی وقت میں نے سیکٹری صاحب سے گزارش کی کہ مہربانی کریں کہ ہم ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں تمام صوبوں کی سرحدیں لگتی ہیں، چاہے وہ سندھ ہے، پنجاب ہے، صوبہ بلوچستان ہے، مطلب اس تمام لوگ جو ہے نا مطلب یہاں سے گزر کر مطلب کہیں حجاز سے جانا پڑتا ہے۔ کسی جگہ پہ بھی اگر صادق آباد میں باہر سے ایمرجنسی ہوتی ہے، ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ لہذا برائے مہربانی آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمیں اس کو مکمل کریں۔ لہذا نہ انہوں نے صرف اسے مکمل کرایا، بلکہ صادق آباد کے مہیا حضرات جو ہے ان کی بڑی مہربانی ہے، انہوں نے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، اور جو سی او صاحب ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں، سب لوگوں نے سخت محنت کی ہے، اور محنت کا آج نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ خبر شامل کریں پاک وطن سے، جہاں اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت محمد حبیب نے کھاد کے بڑے ڈیلر عبدالکریم اینڈ سنز کے گودام پر چھاپہ مار کر مختلف اقسام کی کھاد کی 45,000 بوریاں قبضے میں لے کر گودام کو سیل کر دیا، جس کی مالیت 3,70,38,000 روپے ہے۔ میں نے کبھی بجلی چوری نہیں کی، اور نہ ہی میرے ڈیرے پر چوری کی بجلی استعمال ہو رہی تھی۔ وابڈا والے مخالفین کے کہنے پر اور میری ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے من گھڑت اور جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار شمسی گروپ کے چیف، سابق صوبائی پارلیمانی سیکرٹری، رہنما پیپلز پارٹی علی پور مختوم سید محمد قائم علی شاہ شمسی کا کہنا تھا کہ میں خاندانی سید ہوں، تو میں چوری کی بجلی کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ میرے ڈیرے پر یا میرے گھر پر کبھی چوری کی بجلی استعمال ہوئی ہے اور نہ ہی ہو رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید محمد قائم علی شاہ ہے، اور میں ایک پیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری نسبت محمد و آل محمد سے جا کے ملتی ہے۔ تو آج کل جو سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ ہم نے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بجلی چوری کریں یا ایسے کام کریں؟ یہ لوگ سیاسی بخلاہٹ کی وجہ سے، ان کی اتنی مقبولیت ہو گیا ہے، سیاسی لوگ بخلاہٹ کی وجہ سے یہ ناجائز جو ہیں ان پر وابڈا والے اور طریقے سے بھی ہم شریف آدمی ہیں، یہ سیاسی مخالفت اور ذاتیات کی بنا پر وابڈا والوں نے، ہم بھائی نے ان کے خلاف جو ہے وہ پٹیشن دائر کی ہوئی ہے
उन्होंने नाजायज पहले बिल डाले थे, उसी वजह से उन्होंने कोई भी नहीं था इधर मौके पे, एक मुलाजिम गार्ड इधर ठहरा हुआ था, वो अंदर आ गए, ऐसे किसी को दिखाया तक भी नहीं, कोई नोटिस वगैरह भी नहीं दिया, आदमी भी उधर कोई नहीं थे, भाई मुल्तान था, नाजायज से सियासी शोहरत खराब करने। नासिर, आपको बताएं कि निगरान वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत में बड़ा इजाफा कर दिया। गरीब आवाम की चीखें निकलवा दी। शहरियों का कहना था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हर चीज महंगी हो गई है। कीमतों में इजाफा आवाम की मुंह से निवाला छीनने के मुताबिक है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे इरफान बरोही। जो वफाकी हुकूमत ने आधी रात को हमारे ऊपर ऐसा बम जेको सो छोड़ा है, जो आप हम सुबह से उठे हैं तो हमारे को आप एतबार करें तो कोई अभी से हमारे को कोई होश नहीं है, अभी हम बेहोश है कि ये वफाकी हुकूमत ने ये एक रात में ये ऐसा बम क्यों छोड़ा है। पता नहीं ये लोग क्या हम आवाम से क्या लेना, कौन सा हिसाब लेना चाहते हैं। इससे हालात अभी भी कशीदा हो जाएंगे क्योंकि महंगाई पहले से ज़्यादा थी और ये पेट्रोल बढ़ने से अब जो भी खुराक की चीज़ें हैं खाने पीने की वो आसमान से अभी बातें करेंगी, पहले से ही आसमान से बातें कर रही थी। इसीलिए हम ये जो हुकूमत निगरान सेटअप ये कह रहा था, हम जो मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार के ये कंट्रोल करेंगे महंगाई को, लेकिन इसने जो पेट्रोल और डीजल के जो रेट बढ़ाए हैं, ये जो है एक तो फार्मर जो है वो हारी लोग जो हैं वो उनका मुआशी कत्ल होगा। अभी डीजल की कीमतें बढ़ने से नहीं वो ट्रैक्टर चला सकेंगे, नहीं कोई उसके ट्यूबवेल चलेंगे। इसी वजह से ये लोग जो हमें लालीपाप दे रहे थे, हम महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए तो अवाम का जो भी ब्लड रहा था वो नासिर, आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन जुम्मा मोहल्ला रेलवे लाइन मैदान जंग बन गया। दर्जनों अफराद का खवातीन और उनके अहल खाना पर बदतरीन तशद्दुद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। 24 घंटे गुजरने के बाद भी पुलिस कार्रवाई से गुरेजा है। DPO रजा सफ्दर कासमी ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मंडी बहाउद्दीन जुम्मा मोहल्ला रेलवे लाइन पुराना रसूल रोड मैदान जंग बन गया। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि मंडी बहाउद्दीन जुम्मा मोहल्ला रेलवे लाइन मैदान जंग बन गया। दर्जनों अफराद का खवातीन और उनके अहल खाना पर बदतरीन तशद्दुद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। 24 घंटे गुजरने के बाद भी पुलिस कार्रवाई से गुरेजा है। DPO रजा सफ्दर काज़मी ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मंडी बहाउद्दीन जुम्मा मोहल्ला रेलवे लाइन पुराना रसूल रोड मैदान जंग बन गया। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी। इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोटशुट्टा में इंडस हाईवे पर चोरों ने रात की तारीकी में 2 दुकानों का सफाया कर दिया। चोर लाखों रुपए मालियत का कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान चुरा कर ले गए। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नजीर अंजुम अहमदानी। जी, कोटशुट्टा शहर के संगम में चोटी चौक के नजदीक इंडस हाईवे पर कायम अंसर इलेक्ट्रिक और कैसर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर से चोरों ने रात दुकानों की छतें फाड़कर लाखों रुपए मालियत का कीमती इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान चुरा लिया। चोरों ने दुकानों में लगे CCTV कैमरों के DVR भी चुरा लिए, जिस पर ताजरों ने अदम तहफ़्फ़ुज़ पर शदीद एहतजाज और गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हालांकि रात के वक्त इन मार्केटों में चौकीदार भी तैनात होते हैं, जबकि चोर 2 दुकानों की छतों पर रात भर वारदात करते रहे। चोरी ताबड़तोड़ वारदातों से शहरियों में बेचैनी की कैफियत पाई जा रही है। मकामी पुलिस और क्राइम सीन की टीमें जाए वारदातों पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए। इस सिलसिले में SHO अली इमरान ने कहा कि मार्केट के नजदीकी CCTV फुटेज और फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए गए हैं। बहुत जल्द चोरों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ताजिर बिरादरी और शिया उलमाए काउंसिल के सदर सैयद शेरबाज नकवी ने RPO डेरा गाजी खान और DPO डेरा गाजी खान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ नजीर अंजुम अहमदानी, कोहनूर न्यूज, कोटशुट्टा।
जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने के लिए ज़िला इंतजामिया मलीर का खसूसी इजलास हुआ। इजलास में डीसी मलीर, SSP चेयरमैन इब्राहिम हैदर टाउन समेत उलमाए कराम ने शिरकत की। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राजा बलोच। 12 रब्बिल अव्वल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ज़िला इंतजामिया मलीर की जानब से इंतजामात के हवाले से DC ऑफिस मलीर में इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें DC मलीर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सईद लगारी, SSP मलीर तारिक इलाही मस्तोई, SSP ट्रैफिक मलीर आजम जमाली, टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो, तारिक बलोच, जान मोहम्मद बलोच, रिजवान अब्बासी, नाज़म आला जमायत अहले सुन्नत सिंध, मौलाना मोहम्मद अकरम सईदी, कारी रमजान व दीगर उलमाए कराम ने शिरकत की। इजलास में उलमाए कराम ने 12 रब्बिल अव्वल की मुनासबत से किए जाने वाले तकरीबात पर तफसीली जायजा लिया और ज़िले इंतजामिया को तरतीब बताई, जबकि सहूलियात के फुकदान का भी जिक्र किया। इस मौके पर खिताब करते हुए इब्राहिम हैदरी टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने कहा कि 12 रब्बिल अव्वल से कबल जुलूस के रास्तों की सफाई, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर सहूलियात फराहम की जाएगी। उलमाए कराम ने जिन मसाइल की निशानदेही की है उनको हल किया जाएगा। इस सिलसिले में उलमाए कराम से राब्ते के लिए कमेटी बनाई जाएगी जो तमाम मसाइल हल करेगी। SSP मलीर तारिक इलाही मस्तोई ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। जुलूसों के रूट्स पर पुलिस एहलकार तैनात होंगे और हसास मकामात पर पुलिस के साथ रेंजर्स भी तैनात की जाएगी। तमाम SHOs और DSPs जुलूस के हमरा होंगे। इजलास से खिताब करते हुए DC मलीर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सईद लगारी ने कहा कि इजलास बुलाने का मकसद ज़िले इंतजामिया और उलमाए कराम से मुलाकात करना है ताकि 12 रब्बिल अव्वल के प्रोग्रामों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। इजलास के बाद आलमी दीन मौलाना अकरम सईदी ने मुल्क व कौम की खुशहाली और पाक फौज, रेंजर, सिंध पुलिस समेत तमाम शोधा के लिए दुआ की। पाकिस्तान रेंजर सिंध ने गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन कराची के मुख्तलिफ इलाकों में किया गया, जिसमें 11 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स शामिल थे। रिपोर्ट इसमें जानिए राजा बलोच की। पाकिस्तान रेंजर सिंध ने गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ऑपरेशन कराची के मुख्तलिफ इलाकों अयूब गोट, पख्तूनाबाद, फिरदौस कॉलोनी, नाजमाबाद, मंगोपीर, जमशेद क्वार्टर और कयूमाबाद में किया गया। ऑपरेशन कश्मीर हाइड्रेंट और शाकिर हाइड्रेंट समेत 11 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ किया गया। ऑपरेशन के दौरान 69 वाटर टैंकर भी तहवील में ले लिए गए। मजमूई तौर पर 25 वाटर पंप, 12 जनरेटर, पाइप, इलेक्ट्रिक केबल और दीगर मसरूका सामान भी तहवील में ले लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक दौरान ऑपरेशन 75 मुलजमान को भी हिरासत में ले लिया गया। दूसरी जानिब रेंजर सिंध की जानिब से गैर कानूनी 3 हाइड्रेंट्स के खिलाफ मेरान रोड स्कीम 33 गुलजार हिजरी में भी ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान एक वाटर टैंकर, एक मोटर वाटर पाइप, जनरेटर, लैपटॉप, प्रिंटर और 2000 लीटर ईरानी डीजल भी तहवील में ले लिया गया। दौरान ऑपरेशन 2 मुलजमान मोहम्मद हनीफ और अब्दुल रशीद को भी हिरासत में ले लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान रेंजर सिंध गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेगी। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज। नाज़रीन, आपको बताएं कि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी सिंध के सदर आगा सदीक ने इलेक्शन के हवाले से खदशात का इजहार किया। आगा सदीक कहते हैं उम्मीद है कि इलेक्शन शफाफ होंगे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नूर अमीन। जी बिल्कुल, इस वक्त पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो सिंध के सदर आगा सिद्दीक साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं। आगा साहब बताइएगा, इलेक्शन काफी करीब आ रहे, पार्टी की क्या तैयारी है? उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इलेक्शन के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारी मरकजी कमेटी का स्वात में मीटिंग हुआ था, उसमें हमने अनाउंस किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि पश्तूनख्वा में पार्टी इलेक्शन चाहती है और आइन के अंदर चाहती है, और अब भी हमारा ये डिमांड है कि अपनी जो इनका वक्त है जो मुकर्रर किया गया 90 डेज है, इसके अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए माहौल बनाया जाए और बाहर सूरत इलेक्शन होना चाहिए। तमाम मसाइल का हल एक बेहतरीन जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम जिसमें तमाम इंसान, कौम और उसको कानून साजी का पूरा इख्तियार हो, तो उसमें हमारे मसाइल मज़मिर हैं, उसमें हमारे नुमाइंदे जाके अपनी अपनी कौमों की नुमाइंदगी करते हुए मज़ीद इसमें चेंजेस लाएंगे और अपनी आवाम के लिए और तमाम कौमों के लिए एक ऐसा माशरा, एक ऐसे आइन तश्कील देंगे इसको मज़ीद संवारते हुए कि यहाँ के लोगों तो इलेक्शन के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं और हम चाहते हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर हो, फेयर एंड फ्री हो और हर सूरत हो। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो देखने वाले इस वक्त पाकिस्तानी जो आवाम है, इनको क्या मैसेज दोगे?
हम पश्तूनख्वा मिलन पार्टी के कारकुनों, तमाम पश्तून अफगानों, तमाम कौमियतों, सिंधी, बलोच, सिंधी, सराइकी, पंजाबी, पाकिस्तान के तमाम आवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर 75 साल बाद भी हम न बदले तो शायद फिर हम कभी भी न बदल सके। हमें इन परसुदा निज़ाम से, हमें इन परसुदा कबायली निज़ाम से, मुरूसी निज़ाम से, डिक्टेटरशिप के निज़ाम से, काकरबा परवरी के निज़ाम से, करप्शन कमीशन के निज़ाम से और ये जो दूसरों के हकूक़ पे डालने को ही अपना समझते हैं, तरक्की समझते हैं, हमें इससे निकलना होगा। हमें सबको इससे बालातर कि हम किस पार्टी और किस ज़ुबान से ताल्लुक़ रखते हैं, जो सही बात करता हो, सही मंतिक देता हो, सही लॉजिक देता हो, उसका साथ देना चाहे। जी बिल्कुल, इस वक्त सिंध पख्तूनख्वा के जो सदर थे आगा सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है कि इस वक्त इलेक्शन के लिए पख्तूनख्वा मैप की जानिब से काफ़ी तेज़ी से तैयारियां जारी है और तमाम इलाकों से जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े इलाके उन सब से। नाज़रीन, आपको बताएं कि मेयर हैदराबाद काशिफ और मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से हैदराबाद की मेन शाहराहों और सुरंगियों को खूबसूरत बनाने के सिलसिले में आर्टिफिशियल चिड़ियाघर, बारादरी, हाथी का मुजस्मा, शहर भर को खूबसूरत बनाने के लिए पार्कों का इफ्तिताह किया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे दानिश शेख। मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से हैदराबाद की शाहराहों और चौरंगियों को खूबसूरत बनाने के सिलसिले में हैदराबाद लतीफाबाद में मेडिकेम ग्रुप की जानिब से बारादरी, राउंड अबाउट, ऑटोबान रोड, मेडिकेम टावर, बिटाई चौक, आर्टिफिशियल चिड़ियाघर, नज़्द डिग्री कॉलेज लतीफाबाद और हाथी मुजस्मा नज़्द शहबाज बिल्डिंग के सामने तैयार किया गया है, जिसका इफ्तिताह मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो और मेडिकेम डायरेक्टर एडमिन जफर रियाज बारी ने किया। इफ्तिताह के बाद मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो, मुख्तलिफ टाउन चेयरमैन, म्यूनिसिपल कमिश्नर व दीगर ने बारादरी का दौरा किया, जिसके बाद मुकामी हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां मेहमानों को सिंध की रिवायती अजरक और टोपी के तहत पेश किए गए। इस मौके पर खिताब में रियाज बारी ने कहा कि हम शहर हैदराबाद को खूबसूरत बनाने निकले हैं। आपको पता है कि ये सालों से ये जो खूबसूरती थी ये नहीं हो रही थी शहर के, हमारे जो भी चौराहे, तो हमने आज शहबाज चौक पे जो थे वहाँ पे जो जानवर थे और वहाँ पे जो राउंड अबाउट बना हुआ था ब्यूटिफिकेशन, उसको हमने बेहतर किया है और वहाँ पे काम चल रहा है, इंशाल्लाह उसको भी और बेहतर कर रहे हैं। तब फाखिर शाकिर साहब आए और मेयर काशिफ शोरो साहब आए, इन्होंने हमसे अप्रोच किया और हमने इसको रीडू किया है। 5 राउंड अबाउट को हमने रीडू किया है, जिसमें से 2 काम अभी इफ्तिताह कर चुके हैं, शहबाज बिल्डिंग और बारादरी। तो ये मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है शहर के लिए कि शहर ब्यूटीफायर है, साफ सुथरा है। तकरीब से मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन जावेद इकबाल व दीगर ने भी खिताब किया, जबकि तकरीब में सियासी, समाजी व कारोबारी शख्सियात ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ दानिश शेख। खबर शामिल करें कोर्ट मोमिन प्रेस क्लब से, जहां दूसरी मर्तबा चोरी की वारदात हुई। चोरों ने ताले तोड़कर हजारों रुपए मालियत का सामान और रिकॉर्ड चोरी कर लिया। पुलिस ने नामालूम चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इस मौका पर फोरेंसिक लैब और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मौका वारदात से जदीद तर्ज पर शाहिद इकट्ठे करके मुल्जिमान को जल्द बेनकाब करने का दावा किया है। लाहौर में डेंगू के डंग का सिलसिला जारी है। एक दिन में डेंगू के 32 मरीज रिपोर्ट हुए। डीसी लाहौर की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स की फील्ड में कार्रवाइयां जारी हैं। तफसीलात जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में डेंगू के डंग का सिलसिला जारी है। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 32 मरीज रिपोर्ट हुए। जिला इंतजामिया लाहौर के अफसरान की छुट्टी के रोज डेंगू सर्विलेंस जारी है। डीसी लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स की फील्ड में कार्रवाइयां जारी हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जिशान नसरुल्लाह रांझा ने गंगाराम अस्पताल के अतराफ में डेंगू केस रिस्पॉन्स का जायजा लिया। एडीसी जनरल जिशान रांझा ने मुतासिरा घरों और अतराफ में डेंगू स्प्रे की हिदायत की। एसी कैंट नबील मेमन ने कंटोनमेंट बोर्ड 5 में डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। 2 घरों से डेंगू लार्वा बरामद होने पर एसी कैंट ने अपनी निगरानी में डेंगू स्प्रे करवाया।
एसी कैंट ने इनकारी घरों के मालकान को कायल करके अपनी निगरानी में डेंगू सर्विलेंस करवाई। असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड जैनब ताहिर ने AIT का दौरा किया, टीम को डोर मार्किंग यकीनी बनाने की हदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वासिक अब्बास हल ने UC 78 और UC 94 में केस रिस्पॉन्स का जायजा लिया। डेंगू मुहिम में गफलत, एक घर में डेंगू सर्विलेंस न करने पर असिस्टेंट कमिश्नर ने शोकास नोटिस जारी किया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा ने UC 52 वाघा जोन में डेंगू टीमों के काम का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने डोर मार्किंग, टैली शीट्स का जायजा लिया। गुज़िश्ता 24 घंटों में जिला इंतजामिया की जानिब से 910 मकामात से लार्वा बरामद किया गया। DC लाहौर आफिया हैदर का कहना था कि शहरियों से गुजारिश है कि आज की बारिश के बाद घर और इतराफ में पानी खड़ा न होने दें। फील्ड में केस रिस्पॉन्स और डेंगू मॉनिटरिंग को मजीद तेज किया जा रहा है। डेंगू सर्विलेंस में गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कैमरा उम्मीद है कि आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का लाहौर में मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ विंग्स के इजलासों से खिताब हुआ। कहा कि नवाज शरीफ के बास में अवाम को सजा दी गई। दुआ है कि तराजू के पलड़े सब के लिए बराबर हो। उम्मीद है नवाज शरीफ और उनके साथियों की प्रोजेक्ट के कारिंदों की नाइंसाफियों से निजात मिलेगी। नवाज शरीफ से दुश्मनी की सोच असल में पाकिस्तान दुश्मनी और अवाम दुश्मनी की सोच है। नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सरखरू कर दिया, पाकिस्तान को सरखरू करना है। अल्लाह ताला ने हर बार नवाज शरीफ को प्लस किया और हर बार माइनस करने की कोशिश माइनस हो गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा हमजा शहबाज की भी इजलास में शिरकत हुई। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि मुल्क को इंतकाम, टकराव और अफरा तफरी से निजात दिलाना होगी। सूबा सिंध समेत पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की का सफर लेकर जाएंगे। हमारी लड़ाई महंगाई, मौशी बदहाली और बेड गवर्नर से है। नवाज शरीफ और उनके साथियों ने बहादुरी और साबित कदमी से नाइंसाफियों का सामना किया। नवाज शरीफ और उनके साथी ही मुल्क कौम को मसाइल की दलदल से निकाल सकते हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली नवाज शरीफ के मुकद्दर में लिखी है। उन्होंने मजीद कहा कि लोड शेडिंग, दहशत गर्दी खत्म की थी, अब महंगाई में कमी का वादा पूरा करेंगे। नवाज शरीफ ने एटमी धमाकों से पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। नवाज शरीफ अफमाशी तौर पर पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। अवाम अपने वोट से नवाज शरीफ को मजबूत करें, महंगाई हम कम कर देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हमजा शहबाज ने पार्टी तंजीमी विंग्स के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को अवाम ने जब वजीर आजम बनाया, नवाज शरीफ ने अवाम को रिलीफ दिया। वजीर आजम नवाज शरीफ ही पाकिस्तान और अवाम के दुखों का इलाज है। नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान के लिए काम करके दिखाया। नवाज शरीफ पाकिस्तान के तमाम मसाइल का यकीनी हल है। पाकिस्तान की इज्जत, सरबलंदी और तरक्की का मंसूबा सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। नवाज शरीफ खिदमत, इज्जत और दियानत का नाम है। अवाम नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बना रहे, अपनी खुशहाली को यकीनी बना रहे हैं। नवाज शरीफ को हमेशा बहरानों में हुकूमत मिली, लेकिन उन्होंने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। नाज़रीन, आपको खबर दें कि दी लाहौर लाइस्टर स्कूल का फर्स्ट टर्म के नताइज का ऐलान कर दिया गया। पुरवकार तकरीब में बच्चों के साथ साथ वालिदैन ने भी शिरकत की। अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। वालिदैन का कहना था कि शुमाली लाहौर में तालीम के हवाले से दी लाहौर लाइस्टर स्कूल बेहतरीन इदारा है, जहाँ बच्चों को तालीम के साथ साथ खेलों की सरगर्मियों में भी हिस्सा लेने का मौका मिलता है। बच्चों को तालीम के साथ अच्छी तरबियत भी मिल रही है। प्रिंसिपल दी लाहौर लाइस्टर स्कूल मरियम चौधरी ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम बच्चों को बेहतरीन तालीमी माहौल फ्राहम करें ताकि स्कूल से निकालने वाले बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर और साइंसदान बन सके, क्योंकि स्कूल की तालीम बच्चे की बुनियाद होती है। अगर बुनियाद मजबूत होगी तो वो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नाकामी से दो चार नहीं होगा। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि दी लाहौर लाइस्टर स्कूल का फर्स्ट टर्म के नताइज का ऐलान कर दिया गया। पुरवकार तकरीब में बच्चों के साथ साथ वालिदैन ने भी भरपूर शिरकत की। अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। वालिदैन का कहना था कि शुमाली लाहौर में तालीम के हवाले से दी लाहौर लाइस्टर स्कूल बेहतरीन इदारा है, जहाँ बच्चों को तालीम के साथ साथ खेलों की सरगर्मियों में भी हिस्सा लेने का मौका मिलता है। बच्चों को तालीम के साथ अच्छी तरबियत भी मिल रही है। प्रिंसिपल दी लाहौर लाइस्टर स्कूल मरियम चौधरी ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम बच्चों को बेहतरीन तालीमी माहौल फ्राहम करें ताकि स्कूल से निकलने वाले बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर और साइंसदान बन सके, क्योंकि स्कूल की तालीम बच्चे की बुनियाद होती है। अगर बुनियाद मजबूत होगी तो वो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नाकामी से दो चार नहीं होगा।
खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।